him and agreed to give class. Today's our topic is boiling the milk, taking care of Krishna's devotees and helping them to grow in Krishna consciousness. So we are very thankful to Prabhuji and request him to please enlighten us in this matter. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Gyanatimrandasya Gyananjanachulakaya Sachuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah. Shri Chaitanya Manandashtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpatikamlam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sagranagunatanitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijanasetam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sarvanavita Shivshakanitam Shah Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvisheshwari Vasya Destarne Namo Bhavadanyaya Krishna Prem Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurtase Namah He Krishna Karuna Sindhu Deenbandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostate तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you, Chitari Krishna Prabhu, for giving me opportunity on the special day, Ekadashi day. But I am strongly confident that devotees would have been much more happy to hear from His Grace Krishna Keshwar Prabhu. But as he got sick, you gave me opportunity, so I must accept that, and I accepted it. So although I was scheduled to go to worship Lord Narsinghdev, yeah, but again I thought like Lord Narsinghdev will be more happy if I will serve the devotees. Lord is always more happy when his devotees are served. So discussing Krishna consciousness and uplifting one's consciousness is also one of the ways to serve devotees. So आज का टॉपिक बहुत अच्छा है. आज का टॉपिक जो है वो है बॉइलिंग द मिल्क, टेकिंग केयर ऑफ कृष्णास डिवोटीज एंड हेल्प देम ग्रो स्पिरिचुअली. सो टेकिंग केयर ऑफ कृष्णास डिवोटीज हमने पिछले सेशन जो लिया था आज से 3 दिन पहले, उसमें भी थोड़ा सा टच किया था वो एस्पेक्ट, जिसमें हमने हरि, गुरु एंड वैष्णवास के बारे में, जब वैष्णवा एस्पेक्ट जो टच किया था कि हाउ इट्स सो इम्पोर्टेंट टू सर्व द वैष्णवास, तो वहाँ पे हमने जो वरदेव और कांचीपुरम की स्टोरी भी शेयर की थी, जिसमें डिस्कस किया था कैसे भगवान जो है वो भक्त की सेवा की प्रधानता देते हैं. तो यहाँ पर ये बॉइलिंग द मिल्क कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के जब इनिशियल जो मूवमेंट में 1967, 68, 69, 70 में जो डिवोटी जो इकट्ठे करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, और बाद में जब बहुत सारे डिवोटी जब इकट्ठे हो गए, उसके बाद में श्रील प्रभुपाद ने खुद ही बोलना शुरू किया कि although we have got so many devotees but they are not trained properly, so now it's the time to boil the milk. जो सीनियर लीडर्स थे उस टाइम पे, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज और हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज 1971 में ज्वाइन कर लिए थे, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज ने. तो जो सीनियर लीडर्स थे उनसे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नाउ इट्स द टाइम टू बॉयल द मिल्क. व्हाट इज बॉइलिंग द मिल्क? एक तो प्रभुपाद ने बोला नाउ इट्स द टाइम टू बॉयल द मिल्क, तो समझ में ही नहीं आया लोगों को, अच्छा करना क्या है, क्या दूध गर्म करना है क्या? तो प्रभुपाद जी ने फिर समझाया कि बॉइलिंग द मिल्क मीन्स प्रीवियसली आई वाज बिजी इन कलेक्टिंग द मिल्क,
मैं जो है जहां तहां से डिवोटीज को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा था, जैसे हम दूध को जहां तहां से जाकर के इकट्ठा कर लें। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर दूध को केवल इकट्ठा किया जाए और उसको उबाला नहीं जाए तो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से जहां तहां से डिवोटीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, पर उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, सिस्टमेटिक गाइडेंस नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो सभी लोग जो है आपस में ही लड़ भिड़ कर वापस चले जाएंगे भौतिक जगत में। So in order to continue the devotees on and on in their progressive journey of Krishna consciousness, it's very important to boil the milk. It's very important to train the devotees. हम्म। तो फिर लीडर्स को समझ में आया कि अच्छा अच्छा, अभी जो है हमको डिवोटीज को ध्यान देना है, डिवोटी केयर के बारे में भी सोचना है, और वी हैव टू ट्रेन डिवोटीज। बेसिकली बॉइलिंग द मिल्क मीन्स रेजिंग अ पर्सन फ्रॉम कनिष्ठा लेवल टू मध्यमा लेवल। अभी उत्तम अधिकारी तो बहुत ऊपर की बात हो गई। हाँ, तो रेजिंग अ पर्सन फ्रॉम कनिष्ठा मेंटालिटी टू मध्यमा मेंटालिटी। तो इस कारण से आज का सेशन मैं कहूँगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग भक्ति में तो आ गए हैं, अब हमको भक्ति में ऊपर चढ़ने की आवश्यकता है। मिल्क तो भी कंटेनर में आ गया है, अब उसको बॉईल होने की आवश्यकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फिजिकल ग्रोथ जो है वो अन्न खाने से होती है ना, परंतु स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के इनपुट से होती है। जब व्यक्ति सही से चैंटिंग करता है, अटेंटिवली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, जब व्यक्ति स्क्रूटिनाइजिंगली शील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता है, जब व्यक्ति अटेंटिवली हियरिंग करता है विथ कंटेम्पलेशन कि जो स्पीकर बता रहा है वो कैसे रिलेवेंट है, हाँ, जब व्यक्ति सिंसियरली डीटीज की सेवा करता है, तो जाकर के इसको स्पिरिचुअल इनपुट्स मिलते हैं, तो जाकर के स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। मटेरियल इनपुट जब मिलते हैं व्यक्ति को, है ना, घी मिलता है, कुछ फल मिलते हैं, सलाद मिलती है, सब्जियां मिलती हैं, अन्न मिलता है, दाल चावल खा के व्यक्ति की फिजिकल ग्रोथ होती है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट अ पर्सन स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल इनपुट्स कमजोर हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाएगी। तो जीडीपी की तो वैल्यू सब समझते हैं, बट सीडीपी की वैल्यू लोग नहीं समझते हैं या कम समझते हैं। व्हाट इज सीडीपी? सीडीपी इज कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जीडीपी तो सब समझते हैं, अभी सीडीपी के बारे में भी हमको समझना जरूरी है। दैट इज कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फ्रॉम कंपल्सिव बिहेवियर टू कॉन्शियस बिहेवियर। व्हाट इज कंपल्सिव बिहेवियर? कंपल्सिव बिहेवियर मीन्स जहाँ पर हम कुछ नहीं करना चाहते, परंतु हमारे अंदर जो काम वासना है वो हमसे जो है कार्य करवा लेती है। कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण, मैं तो पाप में लिप्त नहीं होना चाहता हूँ, पर ऐसा क्या है, कैसी क्या चीज है जो मुझे पाप में लिप्त करवा देती है? दैट इज कंपल्सिव बिहेवियर। From compulsive behavior to conscious behavior, when we become highly conscious of our activities, like Sri Haridas Thakur was so conscious। उसके पास, उनके पास प्रोस्टिट्यूट भी आई थी, बट ही वाज सो कॉन्शियस कि अभी मुझे जो है जपा पे ही जो है फोकस करना है। तो बॉइलिंग द मिल्क मीन्स व्यक्ति की ये जो मजा मस्ती करने की जो मेंटेलिटी है, इससे व्यक्ति को कृष्ण की सेवा करने की मेंटेलिटी तक ला पाना। हाँ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग द मिल्क। बेसिकली training and educating the devotees in such a way that the devotee is inspired to take the responsibility of his spiritual life। एक व्यक्ति इतना इंस्पायर्ड हो चुका है कि अभी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया है। हाँ। अभी देखिए, श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जिस समय, अभी जस्ट 2 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उस समय जब हम लोग कभी गुरु महाराज को लिखते थे कि टेम्पल में फाइनेंसिस की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो गुरु महाराज बोलते थे, हाँ तो अभी आप लोग प्रयास कीजिए कैसे जो है फंड्स को आप अर्न करेंगे, कैसे टेम्पल मेंटेन करेंगे। तो इनिशियली ही यूज्ड टू ही वांट्स अस टू ग्रो आवरसेल्फ। वो चाहते थे कि हम बड़े हों, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और हम जो है प्रयास करें कि कैसे मंदिर को हम सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें। इसके लिए शुरुआत में हमको बोलते थे कि हाँ, आप प्रयास कीजिए फंड्स लाने का, कैसे डिपार्टमेंट्स की इनकम कैसे ग्रो हो, कैसे हो। तो उसके बाद में जब फाइनली जब हम लोग प्रयास कर लेते थे और उसके बाद जो चीजें छूट जाती थी, जो भी शॉर्ट कमिंग्स या डेफिसिट रहता था, उसको गुरु महाराज पूरा भी कर देते थे।
फिर चाहे वो 1 लाख हो कि 4 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी हो. So in that way, he was acting like a mature father. Father wants child to grow up, and father is very happy to see the child growing and standing on his own legs. तो गुरु महाराज उसी टाइम से ही बोलते थे कि सी आई वांट टू सी द टेम्पल बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली. तो ये इम्पोर्टेंट है. इसी प्रकार से गुरु महाराज ने एक बार जो उनकी व्यास पूजा थी, जो डरबन में सेलिब्रेट हुई थी, जिसमें मैं भी गया था, सन 2012 की बात है. तो व्यास पूजा था 17 को. 16 को जो लेक्चर उन्होंने एड्रेस किया था 16 सितंबर को, उसमें उन्होंने क्या शेयर किया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पास टाइम शेयर किया. सुनना चाहेंगे आप लोग? तो गुरु महाराज ने बताया कि जब मैं डरबन एयरपोर्ट में आया, तो वहां पर जैसे भी आया, मुझे वहां की जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, वो किसी को नहीं रोक रहा था, सबको जाने दे रहा था, क्योंकि स्कैनिंग वगैरह हो गई, आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गई, किसी को नहीं रोक रहा था. केवल गुरु महाराज जब निकल रहे थे तो उनको रोक लिया, बोला स्वामी जी थोड़ा रुकिए. तो बोला यस. तो वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बोलता है कि वी नो हु यू आर. वी नो, मैं जानता हूँ कि आप लोग कौन है. हाँ. तो गुरु महाराज को लगा कि मे बी ही हैड सम बैड एक्सपीरियंस विद इस्कॉन, सो दैट्स व्हाई ये व्यक्ति जो है ये रोक करके इस प्रकार से बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग कौन है. तो गुरु महाराज कुछ बोले नहीं ऐसा. तो वो खुद ही बोला कि वी नो, हाँ यू आर फ्रॉम इस्कॉन. गुरु ने कहा यस यस आई एम फ्रॉम इस्कॉन. और उसके बाद में वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डरबन एयरपोर्ट का, वो बोलता है कि वी नो दैट यू पीपल डोंट टच वुमेन. We know that you people don't touch women. So that was a compliment. And Guru Maharaj then understood that he is happy about ISKCON and about a person in saffron robes. So he is happy. Then Guru Maharaj smiled, and he also smiled. And he had great respect for ISKCON. And he himself was giving the compliment that we know that how strict you people are in terms of touching women, that since you are wearing saffron, so you don't touch women. तो अभी गुरु महाराज ने ये चीज क्यों डिस्कस की 16 सितंबर को, व्यास पूजा डे के एक दिन पहले जो एड्रेस कर रहे थे डरबन में डिवोटीज को, वो बताया कि सी लाइक पीपल आर सीइंग अस एज प्योर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा. वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, आर वी रियली द प्योर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा? लोग बाग तो हमको इस ऊंचे स्तर पर देख रहे हैं कि हम जो हैं एक शुद्ध हैं, और हम जो हैं we people don't touch women, we people don't
साउंड नहीं आ रहा करो अभी। ओके, अभी सुन पा रहे हैं? ईयरफोन हटा दिया। अभी आ रहा है। Yes, Prabhu. ओह अच्छा, ओके, मे बी ईयरफोन इज नॉट वर्किंग। ओके, श्योर, नो इश्यूज। एक्चुअली वो पावर कट हो गया इस कारण से वो वाईफाई कनेक्शन चला गया, तो इसलिए दोबारा से ज्वाइन करना पड़ा। Okay, so coming back, yeah, so that was a very important lesson which Sril Guru Maharaj was emphasizing, that it's very important that the platform in which people are seeing us, are we standing on that righteous platform or not? So that's what accepting the responsibility of a spiritual life means. So boiling the milk means raising a person from the level of knowledge to the level of understanding to the level of realization. What is knowledge? What is understanding? What is realization? Knowledge may have, like, knowledge can be understood as theoretical knowledge. हम books पढ़ते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, स्त्री भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है परंतु जब कोई आकर्षक, कोई ब्यूटीफुल वुमन आती है तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो बिकॉज दैट इज नॉलेज। अभी अंडरस्टैंडिंग में व्यक्ति क्या और डीप में जाता है। अच्छा, स्त्री का शरीर है तो 1 मिलीमीटर स्किन अगर उस पे से निकल जाएगी तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। द यंग ब्यूटीफुल वुमेन्स ऑफ टुडे आर द ओल्ड वुमेन्स ऑफ टुमारो, or the present old women of today were quite beautiful few decades back. तो अभी कंटेम्पलेट कर रहा है व्यक्ति, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाने का प्रयास कर रहा है। नथिंग मटेरियल इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अस, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं बेसिकली। मैंने इंद्रियों को इतने लंबे समय से तर्पण करने का प्रयास किया, पिछले 25 साल से मैं इंद्रियों को इंद्रिय भोग देता जा रहा हूँ, पर आज तक इंद्रियों ने कभी थैंक यू वेरी मच नहीं बोला। दे आर नेवर ग्रेटफुल कि विजयेंद्र कृष्ण प्रभु आपने कितना हमको इंद्रियों को इतना इंद्रिय तर्पण करवाया, और वी आर वेरी ग्रेटफुल। कभी इंद्रिया कभी बोलती ही नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट इज रियलाइजेशन? रियलाइजेशन कम्स बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा। जैसे हरिदास ठाकुर का रियलाइजेशन था, हनुमान जी के पास रियलाइजेशन था। सो दैट इज रियलाइज्ड नॉलेज। शील प्रभुपाद के पास रियलाइजेशन था। इस कारण से शील प्रभुपाद बोलते थे, जो डिसाइपल के बोलते थे, प्रभुपाद आई एम सफरिंग विद लस्ट, बोले यू जस्ट सरेंडर टू मी, आई विल किक इन योर हार्ट एंड ऑल द लस्ट विल बी गॉन। ऐसा कौन बोल सकता है बताइए? हम किसी को इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं कि तुम मुझे शरणागत हो और मैं तुम्हारे सीने में एक लात मारूंगा और सब लस्ट बाहर निकल जाएगी। So that is Srila Prabhupada, the realized soul. So since Srila Prabhupada was is a realized soul, realized acharya, so that's why he could bring so much of transformation in the society. Correct? So that is realization. So moving from the platform of knowledge to the platform of understanding to the platform of realization, that is boiling the milk. हर एक पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल बने, वो ग्रोन अप हो सही से। देखिए, जैसे मैं खुद ही देखता हूँ, जैसे 6th क्लास से जब मैं था तो मेरे को एक बार ऐसा दिमाग में आया कि मुझे जो है मेरी मदर को एक गोल्ड कॉइन देना चाहिए। तो उस समय तो मैं तो मध्यम फैमिली से था, पिताजी के पास भी इतना कुछ पैसा था नहीं। तो पर इसके बाद भी मुझे ऐसा दिमाग में आया, तो उसी समय मुझे जो है घर का किराना जो है वो देखने के लिए बोला गया था। तो जो भी पैसे मिलते थे उससे मैं पूरा किराना जो है घर का परचेज़ कर लेता था, राशन जो है। और करीब-करीब बहुत दिमाग लगाता था कैसे पैसे सेव हो सकें। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद में जैसे कहीं पे कोई निरमा का पैकेट है, तो अगर वो थोड़ा-सा कहीं से फट गया है, कट गया है, तो उसकी कीमत जो है वो आधी सी हो जाती थी। साबुन है, वो साइड से थोड़ा-सा टूट गया है, तो उसकी कीमत भी कम हो जाती थी। तो इस प्रकार से कहाँ पे कौन-सा आइटम सस्ता मिलता है, कहाँ पे थोड़ी बहुत टूट-फूट चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, खराब नहीं हुई चीज़, परंतु मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई है। ऐसा बहुत दिमाग लगा-लगा के ₹200 प्रति माह जो है सेव कर पाता था।
और उस समय गोल्ड का रेट जो था वो 5,000 रुपए तोला था। तो 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से जब 2 साल तक सेविंग किया, तो जाकर के 5,000 रुपए जो है वो इकट्ठा जोड़ पाया। उसके बाद मैं पिताजी से बोला कि अभी मदर का बर्थडे है, 26 सितंबर को, तो अभी जो है मेरी इच्छा है कि उनको गोल्ड कॉइन देना है। तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी इच्छा है तुम्हारी, सराहनीय है, परंतु बेटा अपने पास पैसे नहीं है इतने कि हम जो है वो गोल्ड कॉइन अफोर्ड कर सकें। मैंने कहा पैसे कौन माँग रहा है आपसे? तो बोले तो कहाँ से आएँगे? तो बोला मेरे पास है। पिताजी को समझ में नहीं इसके पास पैसा कहाँ से आ गया? 5,000 रुपए मतलब आज गोल्ड कॉइन लेने जाओगे 50,000 रुपए है, तो मतलब कोई से 8th क्लास के बच्चे के पास में आके 50,000 रुपए थोड़ी इकट्ठे होते हैं। तो समझ में ही नहीं आया उनको कुछ गुणा भाग। तो फिर मैंने उनको जब चिल्लर निकाल कर के दी वो 5-5 के और 10-10 के नोट तो जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होता? तो मैंने बताया कि अरे इतना पुराना पुराना हिसाब-किताब था, 2 साल पहले की प्रोग्रामिंग चल रही थी। तो उनको लगा कि अरे यार मतलब कहाँ तो बच्चे कॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, चॉकलेट खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इस व्यक्ति ने 2 साल तक कठिन परिश्रम किया मतलब अपनी एक डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, और वो एक डिज़ायर जो थी वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बेस्ड नहीं थी, बल्कि एक सर्विस पे बेस्ड डिज़ायर थी। तो उनको काफ़ी प्रसन्नता हुई कि बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। So, in that way every parent wants to see the child growing in consciousness. Every spiritual master wants to see the disciples growing in their consciousness. हम्म, तो एक्चुअली तो थोड़ी जो मैच्योर इमेज मेरी घर में जो बनी थी इसका मुझे बहुत फायदा मिला एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग टेम्पल। मेरे पिताजी को कहीं से कहीं तक इस्कॉन से ना कोई लेना देना था, ना इस्कॉन का भी नाम सुना था, ना कभी इस्कॉन किसी मंदिर गए थे। तो उसके बाद भी उनको एक फेथ था कि हमारा बच्चा जो काम करता है वो मतलब थोड़ा देख समझ के ही करता है। मतलब अंधे शॉट्स नहीं खेलता है, देख कर ही बॉल को मारता है। तो इन दैट वे उनको एक फेथ था कि व्हाटएवर ही डज़ लाइक ही डज़ सेंसिबली, ऐसा आँख मूंद करके नहीं काम करता, ब्लाइंड फोल्डेड। और दूसरा चीज़ उन्होंने फिर समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्या है इस कॉल में जिसने हमारे बच्चे को इंटरेस्टेड बना दिया। वो भी इस लेवल पे कि जो बच्चा जो है वो घर में बोल-बोल के लहसुन डलवाता था कि अभी वो बरबटी की सब्जी बन रही है तो पिताजी लहसुन ज़रूर डालिएगा, जबकि मदर को लहसुन पसंद नहीं था। उसके बाद भी मैं ज़बरदस्ती कर बोलता नहीं लहसुन नहीं डलेगी तो मैं नहीं खाऊँगा। और आज वही लड़का बोलता है मैंने प्याज़ लहसुन छोड़ दिया है। यही लड़का है जो फर्जी पार्टियों में जाकर के जो है खा-पी करके आ जाता था और आज ये बोल रहा है कि ये प्याज़ लहसुन नहीं खाता। आपको मालूम है मैं वंशधारी को क्या करते थे कॉलेज डेज़ में, हम लोग जो है कैलेंडर था लाला राम स्वरूप का तो वो देखते थे शादी कौन से दिन है। देखा अच्छा जैसे आज 23 तारीख है ना? कल 24 तारीख की शादी है। तो 24 तारीख को ऐसे ही बाइक से खूब अच्छे से हँस-हँस के निकल जाएँगे और किसी भी शादी में शादी के रिसेप्शन में घुस जाएँगे और खा पी करके आ जाएँगे। अब उन लोग को भी समझ में नहीं आता था कि बाराती की मतलब लड़के वालों की तरफ से है कि लड़की वालों की तरफ से। तो इस प्रकार की तो आदतें थी। तो उस लेवल पे आकर के अब बच्चा घर में आकर के बोल रहा है कि मैं प्याज़ लहसुन नहीं खाता, मैं बाहर का नहीं खाता। तो फादर वाज़ आल्सो वंडरिंग कि मतलब इस्कॉन एक कैसी संस्था है जिसने हमारे बुद्धिमान बच्चे को भी मतलब चेंज कर दिया और चेंजेस आर नॉट नेगेटिव। पहले बोलने पे भी मैं नहीं नहाता था। अभी लैट्रिन जाने के बाद भी नहा रहा हूँ। मतलब दिन में 2 बार 3 बार भी नहा रहा हूँ। तो चेंजेस तो सकारात्मक थे, परंतु इतना परिवर्तन कैसे आया ये पिताजी सोचते रहते थे। तो फाइनली फिर वो देखा इस्कॉन में अरे बहुत बढ़िया साफ-सफाई रहती है, अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग रहते हैं। तो जब आए थे यहाँ पे सितंबर में जब मेरा दीक्षा अनुष्ठान था, उस टाइम पे आए थे, तो उनके काफ़ी कुछ डाउट्स उसी टाइम रिज़ॉल्व हो गए थे। पॉइंट इज़ दैट कि मतलब दैट हेल्प्ड मी टू जॉइन इवन कृष्णा कॉन्शियस ब्रह्मचारी आश्रम। हुँ। इसी प्रकार से एक बार जब गुरु महाराज को जब बताया श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने राधापाद प्रभु के बारे में, कैसे राधापाद प्रभु 4:30 बजे के पहले ही 16 माला का जप कर लेते हैं। कहाँ बताया? गुरु महाराज क्वार्टर में बताया, तो गुरु महाराज ने राधापाद प्रभु को गले से लगा दिया। करेक्ट? तो इस प्रकार से spiritual master becomes happy to see a disciple growing in Krishna consciousness. Guru Maharaj was so happy when sannyas committee approved the sannyas of Shri Srimad Bhakti Prem Swami Maharaj कि अभी जो है हमारा एक ब्रह्मचारी डिसाइपल है, इसने जो है 20 साल ब्रह्मचारी आश्रम में निकाल दिए। 2015 में महाराज को 20 साल हुए थे ना, इसने 20 साल ब्रह्मचारी आश्रम में पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ में बिता दिए और आज संन्यास कमिटी ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ, इनको संन्यास मिलना चाहिए। गुरु महाराज वाज़ सो हैप्पी
while Maharaj name was finalized by the sannyas committee, and Guru Maharaj personally gave sannyas to Maharaj in ISKCON Ujjain. उसको एक दिन की संन्यास सेरेमनी को अटेंड करने के लिए राधे श्याम प्रभु तत्काल फ्लाइट टिकट करके आए थे, सुबह आए थे, शाम को चले गए थे वापस। क्योंकि बोले नहीं, भक्ति प्रेम महाराज के संन्यास इनिशिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, सारे काम धंधे छोड़ करके बोले अटेंड करने जाना है। तो राधे श्याम प्रभु भी पुणे से फ्लाइट पकड़ करके इंदौर आए थे, इंदौर से यहाँ पे आए थे, सुबह आए थे, संन्यास सेरेमनी अटेंड करके फिर शाम को चले गए। तो point which I wanted to say is कि spiritual master becomes very happy when he sees the disciple is progressing spiritually. हम लोग सोचते हैं हाँ हम भी गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो करना क्या है बेसिकली आपको अपने हृदय को गोल्डन हृदय में कन्वर्ट करना है, ये करना है। आपको अनर्थों से लड़ाई करनी है, अनर्थों से आपको लड़ाई करनी है बेसिकली। अनर्थों से लड़ने के लिए शक्ति अर्जित करनी है। हाँ, देखिए दानव लोग कितनी शक्ति अर्जित करते थे, बोले हम देवताओं से लड़ाई करनी है तो बोले हम तपस्या करेंगे, तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको जो है वो देवताओं को हराना है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ हमको दानवों को हराना है। दानव कौन है? दानव है लस्ट। दानव कौन है? दानव है ग्रीड, दानव है एंगर। इसको हमको हराना है। इसके लिए हमको जो है तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कब करी जाती है? बोले रात में। रात में करते हैं हम तपस्या। रात में हम 11 बजे 12 बजे सोते हैं, अपने 8 माला जो बचा हुआ जप रहता है उसको करते हैं, वो नहीं है तपस्या। तपस्या सुबह उठ के की जाती है। तपस्याएं जो है वो सुबह उठ करके की जाती है। हमको जो है एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्राइस पे करनी पड़ेगी। आपको मैं अच्छे-अच्छे वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। अभी अगर लाइट तो आ गई है वैसे, अभी अगर इंटरनेट ऑन हो जाएगा तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया 2-3 मोटिवेशनल मतलब स्पिरिचुअली आपको चार्ज अप कर देंगे ऐसे वीडियोस भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? ओके, भक्त लोग हाथ उठा करके हरि बोल बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके। तो पॉइंट इज दैट कि बॉइलिंग द मिल्क मीन्स एक व्यक्ति को शॉर्ट टर्म विजन से लॉन्ग टर्म विजन की तरफ लेकर के जाना। हाँ, उसको नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ लेकर के जाना। That happens when a person is trained and educated properly. जैसे एक स्टोरी मुझे ध्यान में आती है कि एक व्यक्ति था जिसको बड़ी समस्या चल रही थी उसके जीवन में। उसको आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो उसने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक को दिखाया, आयुर्वेदिक को दिखाया, नेचुरोपैथी को दिखाया, पर कहीं से कुछ लाभ नहीं मिला। तो फाइनली उसके किसी मित्र ने बोला कि ये पास में ही एक बहुत सिद्ध बाबा रहते हैं, हाँ, सिद्ध साधु हैं, क्यों नहीं आप उनको दिखाते हैं? तो बोलता अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं। सबको तो दिखाई दिया अपन ने। मेडिकल साइंस में जितनी पैथी होती है सबको ट्राई कर ली। अभी बाबा जी के पास भी चलते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। तो वो जाते हैं आश्रम में। एक बड़ा बिजनेसमैन रहता है जिसको कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो ये जाता है, बाबा जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास में तुम्हारी समस्या का इलाज है। क्या इलाज है? बोले तुमको जो है अभी बोले कठिन है, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मालूम नहीं, परंतु बता देता हूँ। बोले हाँ बताइए, जो भी बताएँगे मैं तो करने तैयार हूँ, मैं तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून सब कुछ कर सकता हूँ। बोले अच्छा अभी तुमको जो है वो केवल एक अगले 1 महीने तक केवल हरी चीज़ें ही देखनी है ना? जैसे हरी पत्ती देखो, हाँ, हरी-हरी घास देखो, हरी चीज़ें देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम अवॉइड करो कि तुम हरा छोड़ कर के कुछ भी और ना देखो। हाँ, तो बोलते हैं हाँ, मेरे लिए संभव है, मैं तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ। वो तुरंत जाता है अपने मैनेजर्स की मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि अभी जो है मैं 1 महीने की लीव पे हूँ और मैं जो है अभी घर से ही ऑपरेट करूँगा।
और बोलता है कि अभी मेरे घर को, मेरे रूम को भी जो है हरे कलर से पोत दिया जाए। अच्छा, जो गमला है, गमले को भी हरे कलर से पेंट कर दिया जाए, उसमें मिट्टी जो है वो भी हरे रंग की होनी चाहिए। और जो सिक्योरिटी गार्ड जो मेरे से मिलने के लिए आते हैं, उनकी ड्रेस भी पूरी हरी होनी चाहिए। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो बोला कि इनको भी हरे कलर के पेंट से इनको भी पुताई कर दो सिक्योरिटी गार्ड्स की। और समवन इज सेइंग साउंड इज नॉट कमिंग। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अच्छा, तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही है शायद उनके सिस्टम में प्रॉब्लम है। ओके। ओके, ऑडिबल। या तो वो बताते हैं इस प्रकार से, सबको सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उनके उनके ऑफिस से जो पेपर्स भी आते हैं, तो वो बोले वो भी हरे कलर के होने चाहिए। और जो साइन करेंगे वो स्याही भी हरे कलर की होनी चाहिए। बोले अरे बाप रे बाप, क्या खतरनाक व्यक्ति मिला है। सब कुछ ही हरा करा दिया इसने तो। तो अ, उसके बाद में लोग तो काफी परेशान हो जाते हैं उसके इस बिहेवियर से। और फिर इस प्रकार से चीजें जो है वो चलती रहती हैं। अब किसी को मिलना भी अलाउड नहीं रहता है। अच्छा, आई कैन जॉइन विद द लैपटॉप नाउ। Yeah, someone can make me host, so that I will be able to. अच्छा, I'm already the host. Okay, fine. Yeah. आवाज आ रही है? नया कनेक्शन है। ओके। तो बात में है फिर, जब 1 महीने बाद में ये साधु जो हैं ये आते हैं इनसे मिलने के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड अलाउ ही नहीं करते। बोलते नहीं नहीं, हमारे तो बॉस ने मना किया, बोले किसी से नहीं मिलते। तो बोला कि अरे भाई, आप उनको थोड़ा बताइए कि वो 1 महीने पहले का ही हमारा अपॉइंटमेंट है, एंड इट इज अ फिक्स्ड अपॉइंटमेंट। वो खुद ही चाहते थे कि वो मेरे से मिलें। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो फोन ला के पूछता है कोई कोई साधु आए हैं? वो बोल रहे हैं 1 महीने पुराना अपॉइंटमेंट। बोल रहे हैं हाँ, उनको बुला बुला, उनसे ही तो मिलने के लिए मैं बेचैन हूँ, 1 महीना पूरा हो गया। तो फाइनली जब वो आते हैं साधु जो हैं, तो साधु आते तो साधु को भी पकड़ के वो लोग जो है हरे कलर से पेंट करना शुरू कर देते हैं। बोलते कि नहीं नहीं, हमारे बॉस ने कहा है कि वो बिल्कुल कोई भी हरी वस्तु के अलावा कोई वस्तु नहीं देखेंगे, आपको मिलना है तो पहले आपको पूरा पेंटिंग करेंगे आप हरे कलर से। तो साधु हंसना शुरू कर देते हैं। और फाइनली जब मिलते हैं उस बिजनेसमैन से, बिजनेस टाइकून से, तो ये साधु जो है वो जोर जोर से ठहाका लगा के हंसना शुरू कर देते हैं। तो समझ में नहीं आता इसको, बिजनेसमैन को, कि ये क्यों हंस रहे हैं। तो बोलते अरे, तुमने तो मुझे ही पेंट कर दिया, मुझे ही पूरे हरे हरे रंग से पूरा नहला दिया, जैसे होली के समय में होते हैं। बोले आप ही ने तो कहा था कि हरे 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 कलर को छोड़ करके कोई दूसरा कलर देखना अवॉइड करना, कम से कम देखना। तो हाँ मैंने कहा था, पर उसके लिए तुमको इतना इलेबोरेट अरेंजमेंट करना पड़ा, पूरा घर चेंज कर दिया, पूरा सब सिक्योरिटी गार्ड को पेंट कर दिया, हमारे भी पुताई करा दी, इतना कुछ तुमने कर दिया। इसके बदले तुम क्या बाजार से जाकर के हरा चश्मा नहीं ला सकते थे? तुम अगर हरा हरा चश्मा ले आते तो जो मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन दिया था उसका भी पालन हो जाता। करेक्ट, और तुमको इतने इलेबोरेट अरेंजमेंट में नहीं जाना पड़ता। तो उसको चला लगा, पता चला कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है। हरा हरा चश्मा लगा लेता तो सारी चीजें मुझे हरी दिखती, इतना कुछ मुझे चेंज करने का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। सी देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन्स हियर। क्या है कि बेसिकली हम भी क्या है कि सारी सिचुएशंस को चेंज करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को चेंज करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम जो है पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं अपने आप को छोड़ करके। हम सबको प्रचार करके सबको भक्त बनाना चाहते हैं अपने आप को छोड़ करके, है ना। हम दूसरों को बोलते हैं ना कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको अकाउंटेबल होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हाँ, आपको ये करना चाहिए। प्रचारक तो सबको प्रचार करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, बट व्हाट इज द सेल्फ एप्लीकेशन? So in that way, it's important to preach, but more important than is to follow, to change our consciousness, to change our attitude. The person with the positive vision, the vision
which was carried by Vidur, the vision which was carried by Yudhishthir Maharaj, the vision which was carried by Uddhava, Maitreya, correct? So ये इनके पास में वो हरा ग्लास था जिससे जिससे चीजें जो है पॉजिटिवली चीजों को देख पाते थे। इनके पास वो हरा चश्मा था। है दुर्योधन के पास में जो था वो लाल चश्मा था, हर एक चीज वो लाल चश्मे से देखता था, उसको खरा लाल लाल डेंजरस खराबी दिखती थी। तो चश्मा हम कौन सा पहने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके साथ में कुछ जो है वो वीडियोस भी अभी दिखाना चाहूँगा। छोटे छोटे वीडियोस हैं बट दे आर इम्पॉर्टेंट। पहले तो है कि लाइक हाउ अ ट्रेनिंग हाउ द अपब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग कैन हैव सच अ ग्रेट इफेक्ट इवन इन द लाइफ ऑफ एनिमल्स। अगर हमको लगता है कि हम जानवर के समान हैं, बट still we can understand that even when a ferocious animals like lions, if they can be trained properly, then what to say of the human beings who have developed, who have got much more developed intelligence, correct? So that's the point I wanted to make. Yeah, so I am sharing. Can you see my screen? हाँ, अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन को। गुड। He thinks I can't see him. Don't even try that. You're my boy. Hello, little boy. Are you tired? Somebody's sneaking up on me. And he thinks I can't see him. We've done that so many times.
not going to be clever enough. Yo, my boy. Oh my goodness. All right. See, so my point is that कि यहाँ पे इनने जानवर की चेतना को भी ऊपर ऊपर उठा दिया, और अभी कलयुग के इफेक्ट में इंसान की चेतना भी जानवर की जैसी हो रही है। करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार वो दंडकार जो फॉरेस्ट थे वहां पे, हाँ, लोगों को, चीतों को और शेरों को किस प्रकार से थप्पड़ मार मार के कृष्ण प्रेम दिया था, वो तो हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। पर जब एक इंसान के लिए इस प्रकार से संभव है टू हैव अ loving exchanges with ferocious animals like hyenas and this lions and all, so why it's not possible for the supreme personality of Godhead Lord Chaitanya Mahaprabhu? And secondly, अगर अपब्रिंगिंग इतनी स्ट्रांग रहती है, हाँ, कि एक फेरोशियस एनिमल भी एक लविंग बिहेवियर में जाता है, कि वो शेर जो है आपने देखा था कैसे चाटना शुरू कर दिया था उसको, हाँ, तो अगर हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम सही तरीके से अपब्रिंगिंग रखते हैं, सही एसोसिएशन में रहते हैं, तो क्या हमारे अंदर बदलाव संभव नहीं है? क्यों हम होपलेस हो जाते हैं कि नहीं अभी संभव नहीं है? वी शुड बी हाईली होपफुल. Krishna consciousness is the only hope giving movement. Remember this. Gaurang Prabhu repeatedly said that ISKCON, Krishna consciousness movement, is the only hope giving movement in this darkened age of Kali Yuga. जिसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, और हमको बहुत बहुत होपफुल रहना चाहिए, बहुत इंथुसियास्टिक रहना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं श्रील प्रभुपाद को एक दिन प्योरली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद को अनर्था फ्री हार्ट एक दिन ना एक दिन गिफ्ट कर ही रहूंगा। बोले जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, हमको जिद करनी चाहिए, जिद पकड़ लेनी चाहिए कि हम आज तक कभी भी अनर्थों से फ्री नहीं हुए किसी भी लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में एक अनर्था फ्री हार्ट हम गिफ्ट करेंगे ही करेंगे, ये जिद होनी चाहिए हमारे जीवन की, तो हम इतिहास रच देंगे। कौन सा इतिहास? अनर्थ निवृत्ति का इतिहास। तो इट्स इम्पोर्टेंट। कभी कभी मैं भी गौशाला में जाता हूँ और अगर प्रेम पूर्वक कोई गाय है उसके पांव दबाना शुरू कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो गाय के भी फेस के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उसको भी लगता है यार ये तो बहुत पांव दबा रहा है, थोड़े से बाद वो भी मेरा सिर चाटना शुरू कर देती है। तो ऐसा क्यों? Because even animals have emotions, and how we deal with them, it is directly proportional to how they will reciprocate. हाँ, अभी आप विदेशों में गाय जो है डरी डरी रहती, क्योंकि दे जानते हैं कि मालूम नहीं कब कौन आकर के मार देगा। करेक्ट। हमारे यहाँ की गाय डरती नहीं है। आप लोग भी आओगे तभी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो आप लोग को खिला दे रहे थे कि मना नहीं करेंगी। वो लोग जानते हैं कि मतलब ह्यूमन बींग्स मतलब आते हैं तो कोई तरबूज खिलाएगा कि कोई कोई कुछ घास खिलाएगा कि कोई कुछ ना कुछ खिलाएगा, तो दैट्स व्हाट इज नोन टू देम, आवर काउस। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो मैं क्यों ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ? बेसिकली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली व्हेन द positive changes are there is possible even in animals, so why not in us? हमको क्यों लगता है कि नहीं हम कभी भी लस्टी डिजायर से फ्री नहीं हो सकते? हमको क्यों लगता है कि नहीं कभी भी हम ग्रीड से ओवरकम नहीं कर सकते? अरे जब लायन ने अपना फेरोशियस नेचर जो है वो बदल दिया, तो फिर हमको क्यों लगता है कि मतलब ये हम नहीं कर सकते करके? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और भी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा विच विल गिव यू राइट मोटिवेशन। ये देखिए, one of the most difficult video which I have seen. Yeah, sharing screen, selected to share. Sound is already shared. Okay, okay, now you can see.
on, try it again. Come on, try it again. Come on. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इससे आप लोग क्या सीखे? हाँ, वेदांत कृष्ण ने हमको बहुत बढ़िया वीडियो दिखाया, बताया कि किस प्रकार से अभी हमको जो है एक तलवार के ऊपर में खड़ा होना है। कभी भी नहीं, मैं एज ए स्पिरिचुअलिस्ट, एज अ फुल टाइम डिवोटी कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करूंगा। बट पॉइंट इज दैट आप समझ सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्सिटी और द डिफिकल्टी लेवल वाज सो हाई, द डिफिकल्टी लेवल वाज सो हाई कि इवन वहां बहुत सारे जो मटेरियलिस्ट बैठे हुए थे, इवन दे वर अनेबल टू कंसीव कि कैसे मतलब दोनों का वेट एटलीस्ट 80-90 केजी के आसपास होगा। तो 90 केजी का वेट जो है वो एक व्यक्ति एक अपने मुंह में जो जो उसने जो तलवार जैसा या जो भी कुछ रखा है, नाइफ जैसा रखा है, उस पे पूरा वेट आ रहा है। मतलब यहाँ पे उसके दांत के ऊपर 90 केजी का वेट किसी व्यक्ति का आ रहा है, उसको बैलेंस करके वो जो है वहां पे खड़ा हुआ है। इसलिए ब्रिटेन गॉट टैलेंट वहां पे आ गया। तो पॉइंट इज दैट अभी इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसकी अगर आप देखोगे यूटिलिटी वैल्यू इज 0, करेक्ट। बट जिन जिन चीजों की यूटिलिटी वैल्यू 0 है पर जिनमें लोगों का फॉल्स ईगो का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो उस चीज के लिए व्यक्ति प्रैक्टिस कितनी करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। हम जानते हैं कि हरे कृष्ण मोहम्मद अगर हम अटेंटिवली चयन करेंगे तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कितना हाई है। हम जानते हैं अगर हम शील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कितनी हाई है। हम जानते हैं कि अगर हम डीटीज की सेवा करेंगे, डीटी वर्शिप करेंगे, उसकी यूटिलिटी वैल्यू कितनी हाई है। हम जानते हैं वैष्णव सेवा की यूटिलिटी वैल्यू कितनी हाई है। तो यूटिलिटी वैल्यू इतनी हाई होने के बावजूद हमारे अंदर इस प्रकार के डिटर्मिनेशन नहीं है जितना इनके अंदर में। ये पॉइंट मैं एम्फेसाइज करने के लिए वीडियो दिखाया। तो आज एकादशी का दिन है। आज हमको जो है पूरा प्रयास करना चाहिए कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को सबमर्ज कर सकें कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स में। हम जिस प्रकार का डिटर्मिनेशन इन लोगों ने प्रैक्टिसेस के टाइम में दिखाया होगा ना, इसका 1/10 डिटर्मिनेशन भी अगर हम दिखा देंगे ना, वी विल गो बैक टू गॉड। गारंटी हमारी, विश्वास आपका। जो डिटर्मिनेशन इन लोगों ने प्रैक्टिसेस टाइम में दिखाया होगा उसका 1/10, इतना तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो दिखा भी नहीं पाएंगे। 1/10 भी अगर इसका दिखा दिया ना, गारंटी हमारी और विश्वास आपका, कृष्ण जरूर से आपको भगवत धाम ले जाएंगे। तो जी हम लोग जो है मेहनत करने से डरते हैं एक्चुअली। हम जो अरे प्रभु जी कहाँ, हमारा तो टाइम ही नहीं मिलता, प्रभु जी प्रभुपाद बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता हमको, तो प्रभुपाद बुक टाइम ही नहीं मिलता। हाँ प्रभु जी चैंटिंग का, प्रभु जी क्या करें, रात में चैंटिंग करते, सुबह प्रभु जी हमसे सुबह उठना नहीं हो पाता, हमसे सुबह उठना नहीं हो पाता बस हमसे प्रभु जी। अरे हम सुबह उठने की प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं हो, ये लोग ऐसी हाई फाई प्राइस पे करने के लिए तैयार रहते हैं। सो मैं हमेशा प्रभु जी कंटेम्पलेट करता हूँ कि हाउ कैन आई डू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम माय साइड। एक सेंटेंस में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मालूम नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, इस कारण से कई बार इस सेंटेंस को शेयर करने में घबराता हूँ, फिर भी बोल देता हूँ। We should try to beat the enthusiasm of karmis for Krishna's service. दोबारा बोलना चाहूंगा, we should try to beat the enthusiasm of karmis when the question comes of Krishna's service. मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा सा हेजिटेट होकर के बोल रहा हूँ,
बट अगर इस प्रकार का खतरनाक डिटर्मिनेशन होगा हमारे जीवन में, तो वाकई हमारा वो बॉयल मिल्क जो है बॉयल हो जाएगा, बॉयल बन के एकदम बढ़िया रबड़ी बन जाएगा, और उसमें शक्कर डाल करके जो है भगवान को भोग लगा सकते हो। सो दैट इज अ थिंग। तो मैं खुद भी डेली बेसिस पे प्रयास करता हूँ कि कैसे मैं अपने जीवन में RCI का फॉर्मूला लगा सकूं, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एक रिचुअल बना लूं कि मुझे कंटिन्यूअस बेसिस पे इम्प्रूव होना ही होना है, रुकना नहीं है कहीं पे। क्योंकि जिस लेवल पे लोग माया देवी को सर्व करते हैं, फॉल्स ईगो को सर्व करते हैं, मैं तो उसका 1/10 भी नहीं कर पाता। तो इन दैट वे वी शुड बी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक टू मूव अहेड। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में जाते हैं। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पार्टिसिपेंट्स में जाकर के हैंड रेस कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी कोई पॉइंट क्लास के अच्छे लगे हो तो शेयर कर सकते हैं। तो डाइजेशन वीक रहेगा तो चलेगा, पर कॉन्शियसनेस वीक नहीं रहना चाहिए। करेक्ट? दैट इज द लर्निंग लेसन ऑफ द डे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन में डिफरेंस पता नहीं चला था। ओके ओके, हाँ, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन में डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया था, जैसे हमारा जो डीप कंटेम्पलेशन जब हम करते हैं ना, तो उसके बारे में, उन तथ्यों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है। एंड रियलाइजेशन मीन्स 100% नॉलेज अबाउट दैट थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भक्तों को रियलाइजेशन हो जाता है कि बेसिकली मीट ईटिंग इज बैड एंड वी शुड नॉट ईट मीट। तो हम देखते हैं कि जीवन भर एक भक्त जो है वो मांसाहार नहीं करता, जबकि पहले करता था, है ना। जैसे हम देखते हैं हमारे भक्तों को रियलाइजेशन आ जाता है कि किस प्रकार से सिगरेट नहीं पीना, भले चाहे पहले सिगरेट पीता हो, पर बाद में एक बार सिगरेट छोड़ता है तो फिर सिगरेट नहीं पीता। उसको रियलाइजेशन आता है कि हमको शराब को टच भी नहीं करना। प्रभुपाद कैसे डिसाइपल्स हैं जो कि पहले बहुत बहुत शराब पीते थे, एक दिन में पूरा एक एक बोतल। परंतु एक बार उन्होंने दीक्षा लिया और शराब छोड़ा, तो उनने फिर जीवन में कभी शराब को टच भी नहीं किया। दैट इज रियलाइजेशन। बट क्या होता है कि जब हमको अंडरस्टैंडिंग रहती है किसी चीज की, तो हम उसको समझ तो लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु जब तक रियलाइजेशन नहीं आता, जब तक हम क्या है कि फिर से वही काम दोबारा रिपीट कर देते हैं, है ना। एग्जाम्पल सपोज कीजिए, किसी व्यक्ति ने सुना कि हाँ इलिसिट सेक्स इज बैड, करेक्ट। बट इसके बाद भी जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंटरनेट रहता है और वो अकेला रहता है, तो उस टाइम पे वो कुछ तो भी उल्टा पुल्टा देखता रहता है। बाद में जाकर के उसको लगता है कि अरे मतलब मैं क्या गड़बड़ काम कर दिया। तो यद्यपि उसने काफी सुना हुआ है कि इलिसिट सेक्स बहुत खतरनाक एक्टिविटी, बहुत बैड है, हमको कर्म बंधन से बांध देती है, पर चूंकि अभी उसका रियलाइजेशन नहीं आ पाया है, इस कारण से उसको छोड़ नहीं पाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इन आवर लाइफ इज रियलाइजेशन, नॉट जस्ट नॉलेज। नॉलेज तो सबको ही रहता है। अभी इस्कॉन में किसी से भी पूछे तो कोई भी बता देगा हाँ हम शरीर ना होकर के आत्मा है, पर रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, हमको क्या करना है, हमको जो है कृष्ण का दास बनना है। तो ऐसा, तो आई थिंक दिस मेक्स द पॉइंट क्लियर। यस प्रभु। या तो प्रभु आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं खाली बोलता ही नहीं रह जाऊं, बल्कि मेरे जीवन में भी रियलाइजेशन हो। नहीं तो आज से 5 साल बाद मेरा फॉल डाउन हो गया तो आप लोग कहेंगे ब्रिजेन कृष्ण भी बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत बढ़िया लेक्चर देते थे, पर आज नहीं रहे। मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता हूँ प्रभु। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे अंत काल तक जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बना रहूं, इसी प्रकार से भक्ति करता रहूं। इस सब के लिए मुझे आप सभी की बहुत 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 सारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। तो भले अभी मैं बोलने के रोल में हूं तो मैं बोल रहा हूं, परंतु अल्टीमेटली आई एम द सर्वेंट ऑफ यू ऑल। आमी तो गोपीर भरतु पद कमल्यो दास दासानु दास। करेक्ट। ओके, श्याम सका प्रभु ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी आवाज आ रही? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसको मेरे को पूछना है कि जैसे अभी आपने वीडियो दिखाया गॉट टैलेंट वाला, जो वो बहुत प्रैक्टिस किया उन लोगों ने, मतलब सिर्फ जैसा आपने बताया कि सिर्फ उनका पाल से गो को सेटिस्फाइड करने के लिए, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। तो हम भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा कहना था कि हम कैसे, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो सब पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितना उससे कर रहे हैं, उनको तो 100% सब चीज मालूम है।
तो हम अपनी साधना को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए कि हमें किसी को दिखाना नहीं पड़े, अपने आप ही हमारा जो गोल है उनको अचीव हो जाए। हाँ, इसके लिए कृष्ण किशोर प्रभु ने भी लेक्चर से बताया था, मैं भी सुना था, काफी इंस्पायर्ड हुआ था कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम जब हमारी चीजें साधना प्रैक्टिसेस अगर हम दूसरों के साथ अगर शेयर कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारा कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो कंपोनेंट जो है सेटिस्फाई हो रहा है, तो बेटर है कि हम अपनी साधना केवल बहुत ही लिमिटेड 1-2 लोगों के साथ ही शेयर करें, ताकि हम अकाउंटेबल भी रहें और साथ ही साथ में हमारा फॉल्स ईगो कंपोनेंट भी बूस्ट अप ना हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी जब नहीं रहती तो फिर क्या वो लेथार्जी हमको मार देती है। तो इसलिए मैं अकाउंटेबिलिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं बात कर सकता। बट जब बहुत सारे लोगों को हमारे बारे में पता रहता है तो फिर क्या कि एक सेंस ऑफ फॉल्स ईगो भी हिट कर सकता है। तो उस सेंस में हम फिर ये हो सकते हैं खाली 1-2 जो काफी क्लोज लोग हैं, जो काफी हमारे करीबी हैं, जो हमको समझते हैं जिनसे हम खाली अपनी अच्छाइयाँ शेयर नहीं करते बल्कि अपनी शॉर्टकमिंग्स भी शेयर करते हैं, है ना, जिनसे हम अपने अनर्थ भी शेयर करते हैं, तो वो फिर क्या बैलेंसिंग हो जाता है। नहीं तो फिर क्या है कि जब हम खाली अपनी पॉजिटिव इमेज जब सामने वालों के सामने रखते हैं और नेगेटिव इमेज तो हमारे सामने वालों के सामने गई नहीं, तो फिर क्या कि हम खाली हीरो ही नजर आते हैं दूसरों के सामने तो इससे फिर क्या होता है कि हीरो तो बन जाते हैं परंतु वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति में वो थोड़ा सा वहां पे बैरियर बन जाता है। इस चीज का सबसे पहले मुझे जो है ये एक्सपीरियंस जो है वो कृष्ण किशोर प्रभु का लेक्चर सुनकर ही हुआ था ऐसा। So that can be one of the practical application point, that just sharing our sadhana with a few individuals, if we are having this, if our false ego is getting afflicted like that. Okay, हर्ष प्रभु, अच्छा श्याम सका प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, रुकिए हर्ष प्रभु को बोलने दीजिए। जी अभी आप अनम्यूट करना पड़ेगा श्याम सका प्रभु आपको। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और शेयर करना थी कि जैसे वो एक गेंद में 6 रन चाहिए थे और जावेद मियांदाद ने 6 लगाया था, मतलब उसने उसका 100% वो उस समय कर दिया था उस शॉट के लिए कि अगर नहीं हुआ तो फिर खत्म हो जाएगा मैच। करेक्ट। अभी हमारी लाइफ में भी हमें नहीं पता है कि अगले जन्म में हम कौन सी प्राणी बनेंगे, जानवर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जैसे दूसरों को लेक्चर में बताते हैं तो वो अपने ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। करेक्ट। अगर हमारी जो अंतिम समय में कॉन्शियसनेस डाउन रहेगी तो हम कुछ भी बन सकते हैं। तो अब हम जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी जन्म में सब कुछ करना है, तो अब हम अपने आप को कैसे वो जावेद मियांदाद बने कि उस एक गेंद पे हम छक्का लगा दें। बोलते हैं श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स को कंटेम्पलेट करते हुए पढ़ेंगे हम। प्रभुपाद जी से लिखते हैं एक एक वर्ड को, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आते हैं जो तो उसको मैं ऐसे अंडरलाइन भी करता हूँ। मैं हर एक वर्ड को तो कंटेम्पलेट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कभी कहीं कहीं से कहीं तक कभी समस्या नहीं रही इस चीज को लेकर के कि भगवान इम्पर्सनल है कि पर्सनल है। तो जहाँ पे वो पर्सनल इम्पर्सनल वाले परपोर्ट्स आते हैं ना, वहाँ बहुत फास्ट तरीके से मैं वहां पर निकलता हूँ। पर जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन की टेंडेंसीज काफी डीप रूटेड है, तो जहाँ पे सेंसेस आर ओनली मेंट टू सर्व कृष्ण, जब यहाँ जहाँ लिखा आता है ना, ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुचते, तो वहां पे फिर मैं थोड़ा रुकता हूँ, वहां थोड़ा कंटेम्पलेट करता हूँ किस प्रकार से जब तक मेरे सेंसेस भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे मुझे खुशी प्राप्त नहीं होने वाली। तो वहां तो रुक करके बात कर रहा हूँ, पर जहाँ पे बहुत ज्यादा किस प्रकार से महत्व के बारे में और प्रधान के बारे में और इम्पर्सनलिज्म के बारे में आता है, तो मैं वहां से फास्ट ट्रैक पे गाड़ी निकाल देता हूँ। तो इस सेंस में अभी जब रीडिंग करते हैं ना, तो उसमें जितने कंटेम्पलेट जितना घुस करके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रभुपाद लिखते नथिंग मटेरियल इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अस। तो कंटेम्पलेट करते हैं हाँ वाकई मटेरियल में तो कुछ शक्ति है ही नहीं, है ना। तो स्त्री का शरीर मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है, तो मटेरियल है तो उसमें तो शक्ति है ही नहीं स्वीकार हमको सेटिस्फाई करने की। इस प्रकार से घुस घुस के तोड़ तोड़ के चीजों को समझ के जब पढ़ने का प्रयास करेंगे और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जो पढ़ रहा हूँ अंदर जाएगा ना इस प्रकार से प्रार्थना के माध्यम से सेवाओं के माध्यम से हम जो है डेप्थ में जाते चले जाएंगे और इस जीवन काल के बाद में भगवत धाम चले जाएंगे। और नहीं भी जा पाए तो फिर एक आध लाइफ टाइम रुक करके एक आध ड्रॉप होकर के अपना सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। जो निधि ध्यास जो है मतलब कि निधि ध्यास मीन्स एप्लीकेशन प्रिंसिपल से वाला ही। थैंक यू सो मच धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हर्ष प्रभु एंड देन सोमेश टाटी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु जी जैसे ये वाला पॉइंट था बॉइलिंग द मिल्क वाला,
training devotees in such a way that they will take responsibility of their own spiritual life. So, is this the highest platform, or there is something more than this also? See, the highest platform is love of Godhead, correct? We all know that. As Prabhupada explained in Bhaktivedanta Purport, that highest thing is love of Godhead. But point is that love of Godhead is not so cheap. It's not just a feeling. You just, I feel love for a girl, so similarly, I feel love for God. No. Love to Shri Srimad Radhanath Swami Maharaj ke quote hai, to love means to serve. To serve means to please. If we are saying that I love Krishna, that means that our whole soul attempts are going to be to serve Krishna, to please Krishna. What it pleases Krishna, अभी वो तो फिर कृष्ण ने पूरा भगवत गीता में बता ही दिया किस प्रकार से कृष्ण को चाहिए, हाँ, लस्ट फ्री हार्ट, कृष्ण को चाहिए ग्रीड फ्री हार्ट, कृष्ण को चाहिए एंगर फ्री हार्ट. तो फिर वहां सबसे तो अनर्थ निवृत्ति हमको मतलब रोक देती है. तो फिर व्यक्ति जो है वो समझता है कि अच्छा, तो इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट पर कहीं ज्यादा जाकर के वजन दिया कि व्हेन वन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ ना, उसकी अनर्थ निवृत्ति बहुत फास्ट होने लगती है. तो ऑटोमेटिकली ही इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्लीजिंग कृष्णा. तो इसलिए मैंने बोला कि हमारे लेवल पे जो हम कनिष्ठा लेवल से मध्यमा लेवल तक आना है ना, उसके लिए हमारे के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर अभी फिर से लाइट गोल हो गया. ठीक है, इसलिए मैंने लैपटॉप उससे डिस्कनेक्ट नहीं किया था. ओके, एक और क्वेश्चन था, किनका था? सोमेश टाटी प्रभु का था. यस प्रभु जी, पूछिए. सोमेश टाटी प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रभु जी, पहले तो 2 लाइन्स में बहुत ही अच्छा प्रभु आपका लेक्चर था. इस ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी, आपके लेक्चर्स होते हैं बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल, जिससे जरूर सुधरेगा हमारा आज और कल. एक ये शेयरिंग थी. आप आशीर्वाद भी दीजिएगा कि हम इसको अच्छे से आत्मसात कर सके. और प्रभु प्रश्न है कि जैसे आपने जो बताया कि वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें कर्मी से ऊपर मतलब अपनी कॉन्शियसनेस का अगर हम उतना जिस जोश से जिस पैशन से वो करते, अगर हम उतना पैशन डेवलप कर सके, तो उस तरह का पैशन डेवलप करने के लिए हमारे को किस तरह की प्रैक्टिकली कॉन्शियसनेस होना चाहिए उस मूड को डेवलप करने के लिए. होप आई एम माय क्वेश्चन इज क्लियर. क्या होता है, मैं देखा हूं, संबंध ज्ञान जितना स्ट्रांग रहता है ना व्यक्ति का संबंध ज्ञान, उतनी मात्रा में वो जो है अपने आप को अभिधेय में जो है वो लगा पाता है. अभिधेय मीन्स एंगेजिंग वनसेल्फ इन डिवोशनल सर्विसेज. तो अभी जैसे क्या है कि, और अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या है कि हमको ज्यादातर चीजें क्या है कि एकदम सामने सामने नहीं दिखती है. गोलोक वृंदावन सामने नहीं दिख रहा है, कृष्ण सामने नहीं दिख रहे हैं, करेक्ट. जो सुख हमको मिलने वाला वो सामने नहीं दिख रहा है, बल्कि जो सैक्रिफाइस जो हम पे कर रहे हैं वो सामने दिख रहे हैं. ठीक है, तो जितना ज्यादा डेप्थ में व्यक्ति का संबंध ज्ञान होता है, उतना ही ज्यादा व्यक्ति वो अभिधेय में भी अपने आप को एंगेज कर पाता है. तो जैसे हम देखें कि शील प्रभुपाद का जो डिटर्मिनेशन था वो तो सारे कर्मीज को ब्रेक कर दिया. सारे कर्मीज के जितने डिटर्मिनेशन थे सबके ग्राफ को शील प्रभुपाद ने पीछे कर दिया, क्योंकि संबंध ज्ञान उतना स्ट्रांग था. ही वाज हैविंग 100% संबंध ज्ञान विद कृष्णा, 100% संबंध ज्ञान विद गुरु, है ना. तो प्रभुपाद के डिटर्मिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो कौन, ये लोग भी थोड़ी उतना परफॉर्म कर पाए, उतनी मेहनत कर पाए जितनी मेहनत शील प्रभुपाद करते थे. थोड़ी कोई 3 घंटे सो करके काम किए हैं. तो इन दैट वे जब प्रभुपाद के बारे में आता है तो आप देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद हैज रियली बीटेड द एंथुसियाज्म ऑफ कर्मीज. जैसे एक प्रहलाद का डिटर्मिनेशन था और एक हिरण्यकशिपु का डिटर्मिनेशन था, पर फाइनली किसका डिटर्मिनेशन जीता? प्रहलाद का डिटर्मिनेशन जीता. हिरण्यकशिपु का डिटर्मिनेशन हार गया प्रहलाद के डिटर्मिनेशन के सामने, करेक्ट. तो एक सुरुचि का सुनीति का डिटर्मिनेशन था कि मैं ध्रुव को जो है वो उसके पिताजी के गोद में नहीं बैठने दूंगी. ध्रुव का डिटर्मिनेशन था कि मैं जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है उनकी गोद में बैठ के बताऊंगा. तो ध्रुवा's डिटर्मिनेशन विन एक्चुअली. तो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड. एक रावण का डिटर्मिनेशन था कि मैं सीता को जो है किसी को नहीं ले जाने दूंगा.
एक हनुमान के डिटर्मिनेशन था कि एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, बस सीता मैया को तो वापस ले जाकर ही रहेंगे। किसका डिटर्मिनेशन जीता, है ना? तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो हाई क्लास डिवोटीज है वो तो हमेशा ही कर्मी से बेटर ही परफॉर्म किए हैं। हाँ, हमारे जैसे छोटे भक्त रहते तो वो लुटते पिटते रहते हैं। तो हमको जो है वो अच्छे भक्तों से इंस्पिरेशन ड्राइव करके हमको आगे बढ़ना है। दैट्स द थिंग। ओके, आई थिंक मे बी दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जगन्नाथपुरी बेस। जी, जगन्नाथपुरी बेस भक्त की जय। हरे कृष्ण पूरी दंडोत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल योर लोटस फीट। तो जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम लोग मटेरियल लोग जो होते हैं वो कोई भी हो तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जैसे किसी भी चीज़ का हम लोग तैयारी भी करते हैं कोई भी कंपटीशन का, तो हम लोग उसमें हो सकता है कि एक बार फेलियर हो गया, 2 बार फेलियर हो गया, जब हम लोग तीसरा बार अगर उसको ट्राई करते हैं तो हम लोग को एक डर रहता है कि हम लोग वापस से कहीं फेल नहीं हो जाए। प्रभु जी उसको कैसे हम लोग ओवरकम करें और वो डिसीजन लेना सही है या नहीं है कि हम लोग उसको वापस से ट्राई करें कि नहीं करें? आप देखेंगे तो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन में ओवर एंडेवर को मना किया गया है कि हमको जो है, क्योंकि हम तो भक्त है ना, तो हमको अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल फील्ड में लगानी चाहिए। पार्शियल एनर्जी है अपनी मटेरियल नीड्स को, मटेरियल बॉडी को मेंटेन करने के लिए लगानी चाहिए। तो वैसी स्थिति में सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो आईएएस का एग्जामिनेशन क्रैक कर सके, ठीक है, और उसने फिर भी ट्राई किया क्योंकि वो समझ नहीं पाया कितना इंटेलिजेंट हो नहीं हो, तो 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया। अब ऑलरेडी वो देख रहा है कि वो जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसको जरूरी नहीं कि उसको आईएएस ऑफिसर ही बनना पड़ेगा। भगवत धाम जाने के लिए तो आईएएस बनने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो हृदय को प्योर करने की आवश्यकता है। तो अपने इंटेलिजेंस, अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप किस मटेरियल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके उतने तक ही हमको जाना चाहिए, उससे ज्यादा हमको नहीं जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट दोनों थी हमारे पास में। नाइट शिफ्ट के 1 दिन का 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलता था, 10 दिन का 5000 रुपए, है ना? पर इसके बाद भी बेसिकली पैसा तो कमाना था हमको, परंतु इस प्रकार से तमोगुण में जाकर के कमाने की आवश्यकता नहीं थी। तो हम लोग ने नाइट शिफ्ट मना कर दिया था अपने बॉस से। मैंने वंशीधारी प्रभु ने मना कर दिया कि हम लोग नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। Although we are there to earn money, but not at the cost of compromising too much of our Krishna consciousness. तो ओवर एंडेवर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स। आप एक स्टैंडर्ड एंडेवर, एक स्ट्रेस जोन तक जा सकते हैं, पैनिक जोन तक मत जाइए, ऐसा। That is what my understanding is. थैंक यू प्रभु जी। Thank you. ओके Okay, शंकर शनिताई प्रभु। यस प्रभु जी, चित्तारी प्रभु की तबीयत ठीक नहीं है तो प्रभु ने मुझे बोला। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया। और प्रभु ने आज कृष्ण कृष्ण प्रभु की तबीयत खराब हो गई तो प्रभु को तुरंत बोलना पड़ा, और प्रभु तैयार हो गए। और प्रभु आज एकादशी है और प्रभु ने मैंने बोल ही है कि 3 आरती करूंगा, लेकिन एक आरती तो मिस हो जाएगी शायद पहली जो मॉर्निंग वाली, तो अब दूसरी कोई आरती करनी पड़ेगी प्रभु को। तो नहीं प्रभु नहीं को नहीं बहुत नहीं नहीं, दो ही करूंगा। आज मैं 2 ही करूंगा। तो प्रभु बहुत एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे लिए। और आज शाम को भी हमारा सेशन होगा, शाम को 7:30 बजे से। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आज। इन्होंने भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के द्वारा यूथ के लिए स्पेशल जो एड्रेस है वो होगा शाम को 7:30 बजे से। उसके बाद जो भक्त भी अपने रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो मुझे अपना नाम दे सकते हैं पहले से। मेरा मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाला हुआ है। और तो एक चैट बॉक्स में एक आया है प्रभु जी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। पिछले कुछ महीनों से लग रहा है था लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट पिछले कुछ दिनों से सडनली ऐसा हो रहा है कि थोड़े से विचार लस्ट को विचलित कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है प्रभु। इसका एक आंसर है, whenever we try to fight with lust without increasing our Krishna consciousness, we will be frustrated. तो अगर आप वाकई लस्ट से फाइट करना चाहते हैं, आपका भी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तो जाकर के आप फाइट कर सकते हैं। That is the answer. So we don't have Krishna consciousness on the platform mind and intelligence. No. By increasing our Krishna consciousness, we try to fight.
and then there are chances to win the game as well. एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्रो, ये नमन प्रो का क्वेश्चन बताएं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। am I audible bro? या अब प्रभु जी प्रश्न ये था, जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कोई भी हम एंडेवर जो करते हैं उस काम को जो रिजल्ट होता है वो इंस्टेंट दिखता है, उसके लिए हम उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। जैसे कि हम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमको टेस्ट पता होता है कि टेस्ट है तो उसका रिजल्ट आएगा तो हम उससे खुश होते हैं। पर स्पिरिचुअल लाइफ में हमको वो चीजें हम इतना जल्दी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ठीक है गोलोक वृंदावन जाएंगे तो बहुत बात की बात हो गई, इतना बड़ा टारगेट लेकर के हम चल नहीं पाते हैं, तो हम उस हिसाब से उसके लिए एंडेवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कैसे छोटे छोटे टारगेट सेट किए जाए अपने लिए, जिसके लिए हम अपने आप से सोच पाए कि हाँ ये अचीवेबल है हमारे लिए और हम इसको कर पाएंगे, जिससे शायद हम ज्यादा एंडेवर अच्छे से कर पाए। आप देखिए जिस प्रकार के अभी जो प्रेजेंट स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो अच्छी स्टैंडिंग में है, तो आप देखेंगे उनका कॉन्शियसनेस लेवल कितना स्ट्रांग रहता है, कितना अच्छा रहता है। तो इवन इस प्रेजेंट डे एंड एज में विदाउट कांटेक्ट ऑफ मनी, वुमेन and all the material luxuries, they are far more happier than the people who are having the close contact with money and women. Correct? So that itself is the proof that how a person is happily situated even with less resources in one's life. तो ये सारी चीजें contemplate करके by contemplating the glories of devotional services, by reading and hearing the glories of devotional services, it's not कि सब कुछ जो हमको मिलने वाला है वो शरीर छोड़ने के बाद ही मिलने वाला है। इवन इसी शरीर के साथ में शरीर जो हमारी चेतना का जो उठाव होता है, तो बिना किसी एक्सटर्नल रीजन से इंटरनल सेटिस्फैक्शन हम महसूस करते हैं, जबकि जनरली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू फील सम सेटिस्फैक्शन। करेक्ट? तो ये फेथ और जो अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी, ये हमको इनेबल, ये हमको मोटिवेट करती है टू वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। श्रेयस और प्रेयस में डिफरेंस समझना पड़ेगा हमको। So that understanding will enable us to work enthusiastically. So it's not that just going back to Godhead is one goal. Even in the present life also, if a person wants to be blissfully situated, he need to have a high consciousness. Low consciousness से व्यक्ति बिना वजह फ्रस्ट्रेट होता चला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन सभी सारे क्वेश्चन हो गए, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहीं फिनिश करते हैं। अभी लोकनाथ महाराज की क्लास चल रही है इस्कॉन उज्जैन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, डिवोटीज अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।